अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ। आप बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसकी ऑडियो आ रहा है इसका वीडियो के साथ? जी चलें, ठीक है। आपको आ रहा है, क्लियर है? ओके। Welcome to the history of audit. At Mazar, we're proud to be auditors because of the important role it plays. To understand its importance and why we do what we do, it helps to know something of the history behind audit's development. The first references to audit are around the time of the Roman Empire, some 2000 years BC. The emperors appointed bright and ambitious young men that they considered trustworthy as quaestors. The quaestors were sent to the corners of the Roman Empire to ensure the governors who ruled the provinces were spending the money that Rome had sent correctly, the assets that money had bought were protected and looked after and existed, and importantly, that the taxes that the governors were due to collect and send to Rome were being collected and were being sent to Rome without the governors taking a slice off the top. So a theme starts. Somebody, in this case a ruler, appoints someone they consider trustworthy to verify financial expenditure, assets, and that there's no fraud. Moving on some 3,000 years to Henry I of England. It was Henry I who first used the word audit, which actually means to hear. Like the Roman emperors, he sent auditors to the corners of England to confirm that the barons who ruled on his behalf those areas were spending the exchequer's money as it should do, that assets again were protected, and that taxes were being collected and sent back to the king. The key development, though, that created audit as we see it today was due to the Industrial Revolution in the late 1700s. For the first time, investors became part of the business process. But investors will only invest money in something they believe is safe and they understand, so they appointed people they considered trustworthy, often business associates and friends, to verify that the information being provided by the management, the people behind the potential business, was, well, to use modern terms, true and fair, something they could rely on. So there we have it. Audit today remains about this. Someone trustworthy, reporting to investors, no, not companies, but investors, on financial information prepared by management, and whether that information is reliable, or again, to use the terms, true and fair. Of course, audits developed further. The stock market crash in the US in 1929 resulted in a lot of new regulation. From then, auditors needed to be professionals qualified, not your friends. It also brought around a much greater focus on the profit and loss and financial reporting of performance. The development of computers and computerization enabled businesses to become truly global and truly massive. And we had to adapt our organizations and techniques to respond to this. Auditing scandals in the 1980s and 1990s brought further regulation. But one of these scandals, Enron, demonstrates the importance of being trustworthy. Enron were audited by Arthur Andersen, then the largest and most financially successful audit firm. Because one of its partners was deemed complicit in such a large accounting scandal, it lost its reputation, and so it ceased to exist
understand a little bit why we at Mazar place such an importance on maintaining really high standards of integrity, independence, ethics, and technical competence. Final point, though, is that history's shown us we exist only because others, initially rulers, authorities, private individuals, and then investors, wanted us to be there. But they only want us if we are trustworthy. At Mazar, we're proud to be seen as excellent auditors because we're trustworthy, because the role is so important in the economic cycle and the operation of the world in many ways. And we're committed to keeping our standards at the very highest. ठीक है जी, क्या समझ में आया? हाँ जी, ऑडिट के बारे में क्या समझ में आया? सबसे पहले जो है वो किंग हेनरी था जिसने वर्ड ऑडिट का यूज़ किया, और वो जो अपनी रियासतों में जो बैरन्स भेजता था, जो राशन भेजता था, तो वो ये देखना चाहता था कि वो सही तरीके से लोगों की फलाह बहबूद के लिए सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो हो रहे नहीं हो रहे, उसके लिए उसने कुछ वज़ीर भेज दिए। जो वज़ीर नहीं थे, वज़ीर के ऊपर उन्होंने ऑडिटर्स भेज दिए। ऑडिटर रिपोर्ट करते थे कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो उन्होंने रखा हुआ है, उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एलिमेंट तो शामिल नहीं है, वज़ीर अपने मकसद के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर ये जो इंडस्ट्री है, ये ऑडिट की ट्रस्टवर्दीनेस ये इवॉल्व होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि भाई कंपनीज़ ने, शेयर होल्डर्स ने कंपनी से क्या किया कि भाई अपना ऑडिटर अपॉइंट करना शुरू कर दिया। फिर मसला आ गया, कंपनी के अंदर मसला आ गया और उनके इन्वेस्टर्स के अंदर मसला आ गया कि भाई ये तो आपके दोस्त हैं, आप जिनको ऑडिट करने के लिए ला रहे हो, जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट के पास राइट नहीं होना चाहिए ऑडिटर को अपॉइंट करने का। फिर वर्ड आया इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। तो अब ऑडिटर को जो अपॉइंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो शेयर होल्डर कर रहा है, वो इन्वेस्टर कर रहा है। टू चेक द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, टू इंश्योर दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ नहीं है, ठीक है जी। तो ऑडिट का जो मकसद है ना वो ये है, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट की जो क्लास है ना उसको सिर्फ अब्जॉर्ब करने की कोशिश करना, लेकिन हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आगे जाके और एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे जाके मजीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस पूरे कोर्स की ना एक तरतीब है, वो तरतीब से मैं आपको लेके चलूँगा इंशाल्लाह ताला, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अच्छा जी, ऑडिट से पहले समझ लेते हैं कि अश्योरेंस क्या है, ठीक है। अश्योरेंस इज अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, अ कॉन्फिडेंस ब्रिंगिंग द शेयर होल्डर इनटू कंफर्ट जोन, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस, कंफर्ट जोन वाया ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब कल की मैंने क्लास में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शो किए थे आपको ओरिएंटेशन में, ठीक है। उसके मुताबिक ऑडिट होता है। A degree of assurance that can be provided about the reliability of financial statements of a company will depend on the amount of work performed and the result of work. तो सबसे पहले assurance क्या है? Positive declaration. Assurance is the positive declaration. ठीक है भाई, आपके जो है ना वो घर वालों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स घर के बनाए, बजट बनाया, और आपको कहा कि भाई देखो कि क्या ये सही बना है कि नहीं बना। आपने देखा और आपने कहा मेरी नॉलेज के मुताबिक, मैंने जितनी अकाउंटिंग की नॉलेज ली है उसके मुताबिक ये सही बना है। तो आपने क्या किया? पॉजिटिव डिक्लेरेशन दी घर वालों को कि ये जो चीज़ें बनी है, रिकॉर्ड जो बना है वो सही बना है, ठीक है। तो यही काम ऑडिटर करता है कंपनी के लिए, कि कंपनी मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है तो ऑडिटर उस पर अश्योरेंस देता है, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले जो हमारे कैफ का ओरिएंटेशन था उसमें कहा कि जितनी भी बैलेंस शीट है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो एक स्टोरी बताती है कंपनी की कि भाई कंपनी इस सन में शुरू हुई है, बिजनेस इतने सालों में इतना ग्रो कर गया है, और इस साल की सेल्स इतनी है, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी है, इस साल हमारे एसेट्स इतने पड़े हैं, कैश फ्लो इतने पड़े हैं, हमने ये काम किया। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, अगर आप देखो तो पूरे साल की एक स्टोरी बताती हैं, ठीक है। पूरे साल की एक कहानी होती है कि भाई हमने ये काम किया, हमने इतनी इंपोर्ट की, हमने इतनी एक्सपोर्ट की, इतना प्रॉफिट हमने जनरेट किया। लेकिन कोई भी आपको दोस्त भी आपका कोई कहानी बताएगा, कोई स्टोरी बताएगा, तो आप इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करोगे अनलेस कि कोई थर्ड पर्सन भी आके उसको बता दे कि हाँ ये कहानी जो ये सुना रहे वो सही भी है कि नहीं है, ये जो वाक़या है वो सही है कि नहीं है, फेक न्यूज़ तो नहीं है। फेक न्यूज़ का आजकल कल्चर भी बहुत चल रहा है ना। तो भाई ये जो कहानी है ये किसी ट्रू स्टोरी पे मबनी है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कॉन्जरिंग देखी है, द लास्ट राइट्स, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वाली पार्ट आया कॉन्जरिंग का, तो उसके अंदर वो दिखाता है कि भाई ये जो भूत वूत पकड़ते थे जाके, तो ये सिर्फ फिक्शन नहीं है,
ये ओरिजिनल में भी ऐसे लोग रह चुके हैं और वही कैरेक्टर हमने डिपिक्ट किए हैं मूवी के अंदर, पिक्चर के अंदर, जो कि रियल लाइफ की स्टोरी से इंस्पायर हुए थे। फिर वो रियल लाइफ वाले जो बंदे थे, जो उसकी वो वाइफ थी, उसकी उसने तस्वीरें वगैरह भी दिखाई, उनके वो चर्चेस की फादर्स वगैरह की तस्वीरें दिखाई। तो यकीन दिलाने की हमें कोशिश की गई, अश्योरेंस देने की कोशिश की गई कि भैया जो हमने आपको स्टोरी बताई है वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की एक स्टोरी है जो वो शेयर होल्डर को बताता है, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर तब तक उस स्टोरी पर रिलायंस नहीं लेता जब तक उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट ना लगी हो, ठीक है। तो तस्दीक जरूरी है, तस्दीक के बारे में कोई भी स्टोरी है वो बेकार है, वो फिक्शन है, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं है, शेयर होल्डर के पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई हुई है, तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर के लिए फिक्शन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अश्योरेंस अश्योरेंस 3 तरीके की होती है, सही है। आपका पाला सिर्फ 2 तरीके की एश्योरेंस से पड़ेगा, तीसरी एश्योरेंस पे आपसे खेला जाएगा, ठीक है। माजी में आईकैप खेलता गया, हो सकता है आगे भी जाके खेले, उस जमाने में बेसिक लेवल के पेपर आते थे। टाइप ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई है, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आपको दी है, वो 100% एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है। नंबर 2, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है, जबरदस्त। इसमें क्या कहता है ऑडिटर, इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट मतलब मोटी मोटी बातों में अगर मैं कहूं, मटीरियल मतलब कोई ऐसी बड़ी धांधली, कोई ऐसा बड़ा एरर, कोई ऐसा बड़ा फ्रॉड मेरी नजर में नहीं आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड मटीरियल इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मटीरियल रिस्पेक्ट को मैंने डिफाइन किया यहाँ पे 80%, ये 90% भी हो सकता है, ये 70% भी हो सकता है, ये सिर्फ इलेबरेट करने के लिए किया है। असल में ये परसेंटेज एग्जिस्ट नहीं करते, चूंकि हम अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो हमारी फील्ड में जब तक कोई बात नंबर से नहीं बताया जाए तो हमारी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो 100% एश्योरेंस इज एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस और 80% एश्योरेंस इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन ये परसेंटेज कहीं पे कोट नहीं करनी है, समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाए लिमिटेड या नेगेटिव एश्योरेंस। नेगेटिव एश्योरेंस क्या है भाई, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। सबसे पहले एब्सोल्यूट, फिर हाई लेवल बट नॉट एन एब्सोल्यूट, फिर लो लेवल ऑफ एश्योरेंस बेस्ड ऑन अवर रिव्यू। यहां पर क्या कर रहा है भाई, ऑडिट कर रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है तो क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। नेगेटिव या लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा है तो क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। बेस्ड ऑन अवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव that the accompanying financial statements do not give present true or fair view in accordance with the international financial reporting standard, ठीक है। जो सर आपका पाला पड़ेगा ना, वो इन 2 ओपिनियन से पड़ेगा। किन 2 ओपिनियन से, एक रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा लिमिटेड या नेगेटिव एश्योरेंस। आईकैप आपको तंग कर सकता है, सिर्फ ये तंग कर सकता है कि बताओ फलानी इंफॉर्मेशन पे मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता। उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि भाई मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, किन केस में मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं और किस केस में मैं लिमिटेड या नेगेटिव एश्योरेंस देता हूं, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर मैं ऑडिट कर लेता हूं, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेता हूं और उसकी बेसिस पे मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। लिमिटेड एश्योरेंस में मैं रिव्यू करता हूं। रिव्यू क्या है भाई, ऑडिट एक फुल स्कोप है, इंस्पेक्शन करता हूं, कंफर्मेशन भेजता हूं, रिकैलकुलेशन करता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर करता हूं, सारे काम करता हूं। रिव्यू के अंदर मैं लिमिटेड प्रोसीजर करता हूं, इंक्वायरी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। जितने मैं जार्गन्स बोल रहा हूं घबराना नहीं है, आगे जाके पूरे डिटेल में और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो अभी मेरे साथ साथ बस फ्लो में चलते रहना, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अवर रिव्यू क्या है भाई, यहां पर अगर मैं किसी चीज की 100% इन्वेस्टिगेशन करता हूं, तहकीक करता हूं, इन्वेस्टिगेशन तो ऑडिट से भी आगे निकल जाता है ना, तफ्तीश में आ जाता है कि लाइटें वाइटें बंद करके किसी को चमाटे वमाटे मारो, हाँ, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। रीजनेबल एश्योरेंस उससे कम होता है, मतलब कम लेवल ऑफ टेस्टिंग, मतलब यहां पर सैंपल बेस पे काम होता है दोस्त, यहां पर सैंपल बेसिस पे काम होता है। अगर मैं सैंपल बेसिस पे काम कर रहा हूं, फर्ज करो यार एक लेजर को मैं टेस्ट कर रहा हूं, उसमें 100 ट्रांजेक्शन है, सैंपल मेरा निकला 10 ट्रांजेक्शन का, 10 ट्रांजेक्शन के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। लेकिन अगर अगले जो 90 सैंपल्स हैं उसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट निकल कर आई तो ऑडिटर ने तो ऑडिट सैंपल बेसिस पे किया, उसकी जिम्मेदारी यहीं तक है। उसकी जिम्मेदारी है कि सैंपल सही तरीके से सिलेक्ट करे,
सर सैंपल सिलेक्शन पे भी हमारा एक सेपरेट स्टैंडर्ड मौजूद है, आइजा 530। सर मटेरियल स्पेक, सर मटीरियलिटी के लिए भी एक सेपरेट स्टैंडर्ड मौजूद है, आइजा 330, 320। तो हर जो टर्म मैं आपको यूज कर रहा हूं उस टर्म के पीछे एक पूरी साइंस है, पूरी लॉजिक है कि क्यों ऑडिटर ये बोलेगा कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ली है, और हम इस चीज को देखेंगे क्या ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ले भी ली है या नहीं ली है। ठीक है, फिर लिमिटेड एश्योरेंस में आ जाओ। अगर मैं टेस्ट कर रहा हूं कि यार किसी को 80% टेस्ट कर रहा हूं, तो यहां पर आके मैं 40% टेस्ट कर रहा हूं इंफॉर्मेशन को, लेकिन प्रोसीजर मेरे लिमिटेड रहेंगे। ऑडिट प्रोसीजर डिफरेंट है, वो ऑडिट में होंगे, रिव्यू प्रोसीजर डिफरेंट है, जो रिव्यू में होंगे। सिर्फ इंक्वायरी पूछताछ कर लूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर भाई दो चीजों को आपस में कंपेयर करके देख लूंगा। ठीक है भाई, कोविड में ऑफिसेस बंद रहे थे, बिजली का खर्चा कम आना चाहिए, कम आया कि नहीं आया, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे भी एक सेपरेट स्टैंडर्ड मौजूद है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक समंदर है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अगले पेज पर आ जाएं। अब आ जाओ ऑडिट पे। ऑडिट का जो मतलब है ना, अगर आप अंग्रेजी में देखोगे ऑडिट का मतलब इस्तेलाह देखोगे तो ऑडिट मींस एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना इज ऑडिट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर जुमरे में अगर देखो तो ऑडिट मींस ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट क्या क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही है, 5 एलिमेंट्स है। तो 5 एलिमेंट्स क्या होगा भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए मैनेजमेंट कुछ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिस बनते हैं। पीछे क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के पीछे क्या होता है, जनरल लेजर होता है। जनरल लेजर के पीछे क्या होता है, जनरल एंट्रीज होती हैं। जनरल एंट्रीज के पीछे क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग। तो ऑडिटर क्या कहता है, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम, जो उसका पूरा जेवी, पीवी और ट्रायल बैलेंस का सिस्टम है उसकी बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ऑडिट मींस ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम, 3 चीजों की। ऑडिट इज परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ऑडिट इज परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी हु इज ट्रस्टवर्दी। हु इज ट्रस्टवर्दी, जो वीडियो मैंने दिखाई उसका मकसद है, हु इज ट्रस्टवर्दी, कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटर, या अश्योरेंस फर्म भी आप उसको कह सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटर भी कह सकते हो। हु इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन है भाई, शेयर होल्डर है मालिक, जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया। सही है, आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो, भले 500 शेयर ले लो, आप भी उस कंपनी के मालिक कहलाओगे। हाँ, आपका प्रोपोर्शन कम होगा, उसके अंदर आपकी सीए कम होगी, हो सकता है कि भाई बड़े जो शेयर होल्डर हैं वो आपके डिसीजन को ओवरटर्न कर दें। ठीक है, लेकिन आप मालिक तो रहोगे, छोटे मालिक कहलाओगे। सही है, वो बड़े मालिक होंगे, आप छोटे मालिक कहलाओगे, छोटे साहब जी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं किसको, ऑडिटर्स को, जो ऑडिट परफॉर्म करता है। और ऑडिटर कौन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये बात याद रखिए। द सेड कंपनी में ऑल्सो बी कॉल्ड एज अश्योरेंस क्लाइंट। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हम क्या कहते हैं भाई, वो हमारा क्लाइंट है। हम क्लाइंट की टर्म यूज करते हैं कि भाई मैं ऑडिट करता हूँ नेशनल बैंक का, तो नेशनल बैंक क्या है, मेरा क्लाइंट है। मैं ऑडिट करता हूँ भाई एयर कराची का, तो एयर कराची क्या है, मेरा क्लाइंट है। मैं ऑडिट करता हूँ पीआईए का, तो पीआईए क्या है, मेरा क्लाइंट है। पीआईए के लिए बीडीओ क्या है, अश्योरेंस फर्म है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। क्लियर है। अच्छा जी, इन पाकिस्तान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंडक्टेड बाय आइजाज एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो सारे स्टैंडर्ड्स जरूरी नहीं है कि आईकैप अडॉप्ट करे, जो आईकैप अडॉप्ट करेगा वही हमारे एप्लीकेबल ऑडिटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल हवाले से मैंने बात की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी बात करूँ तो बहुत सारे हैं। जैसे IFRS 17 आया हुआ है, 18 पे काम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी क्या भाई, आप कह रहे हो कि मैं इन आइजा के हिसाब से ऑडिट करूंगा, आइजा खान नहीं है। सही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके हिसाब से मैं ऑडिट करूंगा, तो इसकी अथॉरिटी क्या है, कितनी बात मानी जाती है इन स्टैंडर्ड्स की। द ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो ये तो उसकी अथॉरिटी है। आप कह ही नहीं सकते कि मैंने ऑडिट किया है। मैं एज एन ऑडिटर आईकैप का क्वालिफाइड मेंबर, अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करूं तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया अनलेस मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया हो। ठीक है, द आइजाज डू नॉट ओवरराइड लोकल लॉज और रेगुलेशन।
हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी स्टैंडर्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी गिवन है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो बना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो बना है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से, ठीक है। ग्लोबली क्या चीज़ें चली, वो किसी एक कंट्री के रेगुलेशन रूल्स को देखते हुए नहीं बना है, सही है कि भाई अजहर साहब इस कंपनी के अंदर पाकिस्तान में ऑडिट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना दूं, नहीं ऐसा नहीं है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर लॉ रेगुलेशन का क्लैश आ सकता है मेरे साथ, तो वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से अलग से पैराग्राफ उसने दिए हुए हैं, और वहां पे वो कहता है कि जो तुम्हारे मुल्क का कानून कह रहा है वो फॉलो करो, जो तुम्हारे मुल्क का कानून कह रहा है वो तुम फॉलो करो। अब अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं है, वो भी यही किताब फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मोल्ड कर दिया, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जैसे हम कहते हैं आइजा 210, वो कहते हैं ऐसे 210, तो नंबर वही है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं बोलूंगा यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230, वो कहेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को मोल्ड किया, और यहीं पे जो आईकैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी यहाँ पर पावर आती है, उसकी यहाँ पर अथॉरिटी आती है कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है जो दुनिया भर में चल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन टू द रिक्वायरमेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड ऐसा चलता है कि भाई आपके मेन बॉडी है, मेन पैरा है, मेन स्टैंडर्ड है, उसके अंदर आपको समझा देगा भाई ये काम है, इस तरह से करना है, फिर उसके एक्सप्लेनेटरी पैराज भी गिवन है, हम स्टैंडर्ड भी रीड करेंगे क्लासेस में, ठीक है। मैं वो नहीं हूँ कि यार किताब दे दी और हो गया काम, मैं स्टैंडर्ड्स भी आपको रीड करवाऊंगा, इसलिए फाइनल में आपको स्टैंडर्ड से ही दोस्ती करनी पड़ेगी, तो मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे भी रीड आपको करवाऊंगा, ठीक है। और आपको भी कहूँगा कि यार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अगर ले सको तो ले लो अभी से, साथ साथ पढ़ते रहो, अभी इतना बर्डन नहीं होगा स्टार्ट में, आगे जाके बहुत बर्डन आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ तुम्हें फील होगी। जो लास्ट बैच के जितने बच्चे थे वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करके गए कि सर आपने जो स्टार्ट से मेहनत की थी, कुछ बच्चे थे जैसे अभी आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, तो उस बैच में भी कुछ ही बच्चे थे, और वो जो कुछ बच्चे थे ना वो अलग दिखते थे। जो एंड में मैंने सेशंस वगैरह कराए, क्लास भरी होती थी, एंड में मैंने जो सेशन कराए तो वो बच्चे हमेशा अलग दिखते थे, तो मैं जाके पर्सनली चेक भी करता हूँ, फिजिकल क्लास में जाके चेक करता हूँ, ऑनलाइन वाले जो व्हाट्सएप पे देते हैं उनको करता हूँ, उन बच्चों की मिस्टेक्स नहीं निकलती थी, निकलती होती थी भी ना के बराबर निकलती होती थी कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, ऑडिट कैन नॉट बी सेड टू बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद आइजाज अनलेस कंप्लायंस इज मेड ऑफ ऑल आइजाज रेलेवेंट टू दी ऑडिट, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करूंगा तो मैं तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई एक स्टैंडर्ड को मैं छोड़ देता हूँ, ऑडिट एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड को छोड़ देता हूँ, रिपोर्टिंग वाला फॉलो कर लेता हूँ, या मैं डॉक्यूमेंटेशन वाला फॉलो कर लेता हूँ, मैं आइजा 500 छोड़ देता हूँ, ऑडिट एविडेंस छोड़ देता हूँ, मैं नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने आइजा के हिसाब से ऑडिट किया है तो मैं ओवरऑल पूरे के पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान के हिसाब से मैं ऑडिट, नीड फॉर एन ऑडिट, ऑडिट की नीड क्यों है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सवालात जो है ना वो पहले आते थे 1901 में, अब नहीं आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की हद तक रह गए और समझने की हद तक रह गए कि भाई ये प्रोफेशन क्यों ज़रूरी है, और आपने इस ऑडिट को आगे पढ़ते हुए किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना है। एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया कि भाई कोई भी रिलाई नहीं करेगा मैनेजमेंट की कई बात पे, भाई मैनेजमेंट कह रही है इतना प्रॉफिट हमने जनरेट कर दिया, शेयर होल्डर कैसे मान ले। भाई शेयर होल्डर के पास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं तो शेयर होल्डर ने तो उस पर डिसीजन लेना होता है, या तो वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, या कंपनी बेच देंगे, या मर्ज कर देंगे, या कोई बिजनेस सेगमेंट उठा के बेच देंगे, या कोई नया बिजनेस सेगमेंट खरीद देंगे, या डिविडेंड दे देंगे। तो कंपनी के शेयर होल्डर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उन नंबर्स पे देखते हुए डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन गलत हो सकता है अगर नंबर गलत है, इसीलिए शेयर होल्डर को चाहिए होती है एक इंडिपेंडेंट अश्योरेंस। प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, लैंडर्स, बैंकर्स, ठीक है। अब आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक कंफर्ट मिल जाता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कस्टमर्स आपके कस्टमर है भाई, आप माल सप्लाई करते हो, आप पानी की बोतलें सप्लाई करते हो, आप बुक सप्लाई करते हो, आप कुछ भी सप्लाई करते हो, ठीक है। तो कस्टमर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों जरूरी है। फर्ज करो कल को कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो कस्टमर ये देखना चाहेगा भाई मेरे सप्लायर के पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मौजूद है भी कि नहीं है कि वो मेरे बड़े ऑर्डर को पूरा कर सके। अगर मैं उसको एडवांस पेमेंट ना दे पाऊं तो उसकी बैलेंस शीट पे इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इतनी वो कैरी करता है कि भाई वो ऑर्डर को खुद ही प्रोसेस कर सके और मैं पेमेंट बाद में दे दूं उसको। तो ये कस्टमर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर सप्लायर, भाई सप्लायर अगर मुझे माल दे रहा है तो मैं तो किसी भी टाइम पे डिफॉल्ट कर सकता हूं, हो सकता है मेरी आगे सेल्स ना हो रही हो सकता है मेरे बैंक में इतना पैसा ना पड़ा हो तो मैं कभी भी डिफॉल्ट मार जाऊं, हो सकता है मेरे दूसरे जो सप्लायर्स हैं उनके बैड डेट्स में इंक्रीज हो काफी,
तो जो नया सप्लायर है वो भी थोड़ा सा डरेगा कि यार मैं इस बंदे को क्यों मैं अपना माल दूं, हो सकता है ये मेरे भी माल को बैड डेट के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो ये सप्लायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर लैंडर्स, लैंडर्स जस्ट लाइक बैंक्स, जो आपको पैसा दे यूज करने के लिए बिजनेस में। अब आप बैंक को कह रहे हो कि भाई मेरे पास एक ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है, आई चंडीगढ़ पे मेरे पास इतनी बड़ी एक ऑफिस बिल्डिंग है, मुझे लोन चाहिए 20 करोड़ रुपए का, ठीक है, 20 करोड़ रुपए का मुझे लोन चाहिए और वो बिल्डिंग मैं गिरवी रखवा रहा हूं, एज अ मॉर्गेज रखवा रहा हूं, ठीक है। तो बैंक कैसे मान ले कि यार आपके पास वो बिल्डिंग है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जब वो नोट के अंदर जाएगा देखेगा कि बिल्डिंग रिकॉग्नाइज हुई हुई है और ये बिल्डिंग इसी की है, सही है। कैश इतना पड़ा हुआ है, भाई मैं बोल रहा हूँ बैंक के पास जा रहा हूँ, बैंक कह रहा है भाई आपकी कितनी बोरिंग है पहले दूसरे बैंकों से, मैंने कहा यार बोरिंग वोरिंग कुछ भी नहीं है, उसने बोला ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या देखेगा वो बोरिंग्स देखेगा बैलेंस शीट पे है भी कि नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखेगा है भी कि नहीं है, हो सकता है बैलेंस शीट डेट पे बोरिंग नील कर दियो, पे कर दियो 2 दिन पहले, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा पीएनएल के अंदर, कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट पेड का अमाउंट आ रहा होगा, वो देख लेगा, ठीक है। तो जितने भी यूजर्स हैं वो अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो ये उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या बनाता है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस जो हर यूजर के लिए वो चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं, लाइक रेगुलेटर ऑडिट करवा रहा है, सर तारिक ने बोल दिया कि भाई आप टैक्स के हिसाब से मुझे बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, तो टैक्स अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नहीं मानता, टैक्स मानता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। तो अब जो फ्रेमवर्क है वो अक्रूवल बेसिस, क्योंकि आईएफआरएस मेरा पूरा अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है, तो अब अक्रूवल बेसिस से हट के कहां पर आ जाएगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाएंगे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, अश्योरेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, एक तरीके से एक अश्योरेंस भी मिल जाती है कि यार मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो एज पर लॉज एंड रेगुलेशन रखे हैं और कोई मेजर नॉन कंप्लायंस नहीं किए। अगर नॉन कंप्लायंस की होती है तो कहाँ आ जाता भाई? पेनल्टी में आ जाता, पेनल्टी एक्सपेंसेस में, ठीक है, या फिर कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट में डिस्क्लोजर आ जाता, इस तरह की कोई बातें हो जाती। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, इस तरह की कोई बात नहीं थी, तो इसका मतलब कि जितने भी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन थे कंपनी ने उससे कंप्लाई किया है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब ऑडिट होता है तो मैनेजमेंट की सारी गलतियां, सारे अच्छे काम सब पता लग जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, भाई पूरे साल कितना काम किया है, सही है, वो आओ और आके ऑडिट करवा लो। Recommendations for improvement in internal control via board letter, management letter. This will help management in reducing control risk, thereby reducing the audit risk to lower level. बहुत सारी बातें इसके अंदर हो गई हैं, बहुत सारे जार्गन्स को जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर 1 हमने बात की इंटरनल कंट्रोल्स, सेपरेट कहानी है इस पे। वन ऑफ द मेजर ग्रेड इन योर सिलेबस इज द इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। फिर हमने बात की मैनेजमेंट लेटर, बोर्ड लेटर, सर इस पे भी बहुत बड़ी कहानी है। कंट्रोल रिस्क, सर ये रिलेट करता है आपके इंटरनल कंट्रोल से, इसके ऊपर भी कहानी है किससे? ऑडिट रिस्क, सर इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, सही है। तो हर चीज के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो ये आपको एक समरी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। भाई इंटरनल कंट्रोल्स क्या है? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट, नाम क्या है भाई आपका? इसहाक, RISAL, रिसाल। मुझे ये बताओ कि यार तुम्हारा सीए फील्ड के अंदर है, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट ऑब्जेक्टिव है। रिस्क क्या है? ना बन सका, सही है, ना बन सका क्या है? रिस्क है, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर का पर्पस क्या है? अश्योरेंस प्रोवाइड करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने। रिस्क क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से, ये रिस्क है, सही है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपर पास करना, क्वालिफाई करना, आपने देख लिया रिस्क है, रिस्क ऑफ फेलियर। अब आप क्या करोगे? आप कुछ कंट्रोल्स लगाओगे कि यार मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा, मैं लेक्चर्स को टाइमली बेसिस पे रिवाइज करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहूंगा, डेली क्विज अटेम्प्ट करूंगा और ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करूंगा। ये कुछ कंट्रोल्स आपने लगाई। ये क्या है? कंट्रोल्स। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स वो हैं जो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करें, सिंपल अल्फाजों में। तो एक कंपनी चलती है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाए, फाइनेंशियल्स उसके कभी बुरे ना हो, फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेट रहे हमेशा, कैश फ्लो उसके पास अवेलेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी रहे, ठीक है, ऑपरेशंस में खलल ना आए। तो कंपनी के 3 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो मैनेजमेंट और ऑपरेशनल। इसके अगेंस्ट वो लगाती है इंटरनल कंट्रोल्स कि मेरे ये चलते रहें ताकि मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव
मीट होता रहा है। सर इसके ऊपर पूरी डिटेल में चैप्टर मौजूद है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ऊपर से आपको समझ में आ जाए कि यार इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है, मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया आपके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ऑडिट रिस्क क्या होता है, मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया भाई, फेलियर रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क, क्या ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनीज एक्ट ने कहा for private company having a paid up capital of 1 million or lower are not subject to this requirement, however they still may get financial statements audited voluntarily for better accountability and governance। मतलब 1 मिलियन से बिलो तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं ऑडिट की, अगर कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है, वरना ऑडिट की रिक्वायरमेंट किसने दी है भाई, कंपनीज एक्ट ने दी है। तो ये है ऑडिट क्यों करवाना चाहिए। अगर कोई दोस्त पूछे आपका कि भाई मैं ऑडिट क्यों करवाऊं, फर्ज करो आप सीए कर रहे हो ना, उसने भाई अब्बा का बहुत सारा पैसा था, उसने कोई दुकान खोली है, बिजनेस खड़ा कर दिया उसने, ठीक है, दुकान से उसने कन्वर्ट कर दिया, मॉल में चला गया, मॉल से कंपनी खोल ली। अब वो कह रहा है बताओ मैं ऑडिट क्यों कराऊं, तो आप बताओगे भाई इनहांसेस द क्रेडिबिलिटी, तुम्हारे जो स्टेक होल्डर है बैंक से लोन लेते हो, बैंक को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई एक फर्म की ऑडिट रिपोर्ट हो, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस रिपोर्ट हो, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। भाई जाहिर सी बात है तुम तो इतने आउटलेट्स नहीं देख सकोगे ना अपने, तो तुम एक बंदा रख दो सीएफओ, तो सीएफओ की अकाउंटेबिलिटी होगी ना वो, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा, तुम उससे हिसाब किताब पूछ सकते हो क्या है। तो ये सारी हैं वाई यू शुड कंडक्ट दी गेट दी ऑडिट कंडक्टेड। अच्छा, स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पे आ जाते हैं। द वर्ड ऑडिटर मीन्स एक्सटर्नल ऑडिटर एज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। स्कोप क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. To obtain reasonable assurance, reasonable assurance क्या है, reasonable assurance क्या है भाई, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जब भी मैं आपसे पूछूं भाई रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, आप बोलोगे भैया हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अभी तक के लिए यही है फिलहाल, ठीक है। इसमें फिर आगे जैसे ही हम बढ़ते रहेंगे मैं आगे चीजें इसके अंदर मजीद ऐड करवाता जाऊंगा, बात क्लियर है, ठीक है। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट क्या है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस दैट इज कॉल्ड मिसस्टेटमेंट। मैं एक इक्वेशन लिख दूं इधर, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल टू IFRS, ये क्या कहलाती है, ये याद रखना। सो व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल की डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन क्या है, हाँ जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल, पढ़ी होगी ना यार, बेसिक अकाउंटिंग में तो पढ़ी होगी दोस्त। हाँ हाँ, ठीक है। एनी अमाउंट क्या आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, यही है। एनी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर इज सेड टू बी मटेरियल व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू influence what, economic decision of the user taken on the basis of financial statement। यूजर कौन है भाई, ये रहा यूजर, शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, लैंडर, बैंकर एक्सेट्रा। इनका डिसीजन अगर इन्फ्लुएंस हो जाए किसी अमाउंट को देख के जो कि उनके लिए मटीरियल हो, वो कहलाती है मटीरियलिटी। इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। शेयर होल्डर का क्या इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन वो मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। शेयर होल्डर का क्या डिसीजन होगा, भाई हम शेयर खरीद दें, बेच दें, बिजनेस बेच दें, सेगमेंट बंद कर दें, कंपनी को एक्वायर कर लें, डिविडेंड दे दें, बोनस शेयर दे दें, राइट शेयर दे दें, ये होगा इकोनॉमिक डिसीजन शेयर होल्डर का। कस्टमर का क्या होगा, भाई मैं ऑर्डर दे दूं उसको कि नहीं दूं, सही है। सप्लायर का क्या होगा, भाई मैं इसको माल सप्लाई कर दूं, उधार पे करूं कि नहीं करूं, बाद में पैसा देगा नहीं देगा, ये क्या है भाई, सप्लायर का इकोनॉमिक डिसीजन है। बैंकर का क्या है, भाई लोन दूं कि नहीं दूं, भाई मैंने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, मैं रिस्ट्रक्चर करूं कि नहीं करूं लोन को, सही है। गवर्नमेंट इदारे, सिंध गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, भाई डोनेशन देना है, दूं नहीं दूं,
तो यूजर पे डिपेंड करेगा कि उसका डिसीजन किस फैक्टर को देख के इन्फ्लुएंस होगा, दैट इज कॉल्ड मटीरियलिटी। सही है, कोई भी ऐसा अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो आपको देख के लगे कि यार मेरे यूजर का डिसीजन इससे इंपैक्ट हो सकता है, वो क्या है मेरे लिए? मटेरियल है। लिस्टेड कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जिस कंपनी के लेवरेज ज्यादा हो, मतलब जिस कंपनी में डेट पोजीशनिंग ज्यादा हो, इक्विटी कम है, तो उसका मेन यूजर कौन बन गया? बैंकर बन गया, लेंडर बन गया। सही है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई? नेट एसेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शेयर होल्डर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सप्लायर कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, या नेट एसेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हर जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, अपने हिसाब से बेंचमार्क्स देखता है। आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजॉरिटी किस यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये डिटेल के अंदर हम देखेंगे मटीरियलिटी के स्टैंडर्ड के अंदर। क्लियर है भाई? अच्छा जी, आपको क्लियर है? ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा जी, so about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर मसला होगा तो दो चीजों से होगा, एक फ्रॉड से होगा और एक एरर से होगा। तो सर फ्रॉड के ऊपर भी पूरा एक स्टैंडर्ड मौजूद है, जो कि इस बैच के आखिरी दिन तक आप पढ़ लोगे। इतना इंपॉर्टेंट है वो स्टैंडर्ड। ठीक है, वो स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बैच के आखिरी दिन पे भी आप पढ़ लोगे। फ्रॉड और एरर में एक माइनर सा डिफरेंस है, क्या? इंटेंशन का डिफरेंस है, जबरदस्त। ठीक है, जानबूझकर अगर किया तो वो फ्रॉड है, और अगर अनजाने में किया तो एरर है। अगर फ्रॉड किया तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाता है कि यार ये तो है ही चोर साले। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, वरना कुछ और भी बोलता, ये तो है ही है। अगर एरर है तो अनइंटेंशनल है, कोई मसला नहीं है यार, सही कर लेंगे, गलती है कोई मसला नहीं है, बच्चे जाने दो। देयर बाय इनेबल कर रहा है किसको? ऑडिटर को, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। क्लियर है ये चीज? आगे इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऑडिटर की? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो रीजनेबल एश्योरेंस दे दी, फिर उस पर रिपोर्ट इशू करना, एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। देखिए, जिस तरीके से स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई आप कम्युनिकेट करें, शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना है करो, बोर्ड से कम्युनिकेट करना है करो, रेगुलेटर से कम्युनिकेट करना है करो, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना है करो, जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करना है करो, रिपोर्ट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। भाई किस किस केस में किस किस से कम्युनिकेट करूंगा, रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला देखेंगे। टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन अकॉर्डेंस विद आइजा दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपने नाम सुना होगा, सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टैंडर्ड प्यार से कहता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई एनजीओ से उसमें आता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आता है, कंपनीज के अंदर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही, इस तरह और भी बोर्ड्स होते होंगे जिसमें अलग अलग नामों से बनाया जाता होगा, लेकिन हर बोर्ड का एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या होता है? गवर्न करना, चलाना चीजों को ना, गवर्नेंस का रोल होता है। तो स्टैंडर्ड ने एक ब्रॉडर टर्म दे दी, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिनको गवर्न करने का राइट दिया गया हो। सही है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो जहां भी स्टैंडर्ड के अंदर दोज चार्ज विद गवर्नेंस का वर्ड आएगा, आप लोग समझोगे कि वो उसको क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। क्लियर है भाई? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कम्युनिकेट करता हूं मैं? इंटरनल कंट्रोल्स में जो वीकनेसेस हैं वो कम्युनिकेट करता हूं, ऑडिटर रिपोर्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन होने जा रही है वो कम्युनिकेट करता हूं, और ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करता हूं। तो मुझे ये बताओ कि मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। ऑडिटर की रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? शेयर होल्डर को। तो बोर्ड को क्यों बता रहा है? मैनेज वो कर रहा है। ठीक है, तो पहले बोर्ड को बताएगा, फिर बताएगा किसको? शेयर होल्डर को बताएगा। जबरदस्त।
फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडीज को बताने की कि अगर मैं किसी ऑडिट से विड्रॉ कर रहा हूं, इसमें कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, तो किसको कम्युनिकेट करूंगा मैं? रेगुलेटर को या प्रोफेशनल बॉडीज को कम्युनिकेट करूंगा। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की एज अ मेन, क्या? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर है? 3 जिम्मेदारियां ऑडिटर की। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट क्या है भाई? सिंपल सी बात है, मैं एक सेपरेट पेज खोल लेता हूं। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट जो है वो 3 पार्टी रिलेशनशिप है। क्या है भाई? 3 पार्टी रिलेशनशिप है। पहले इस दुनिया में कौन आया? मैनेजमेंट। दुनिया में मैनेजमेंट आई, शेयर होल्डर आया। कौन आया भाई? शेयर होल्डर्स आए, बहुत सारा पैसा ले गए। शेयर होल्डर्स आए, बहुत सारा पैसा ले गए कि वो कंपनी चलाएंगे, कंपनी बनाएंगे। 3-4 दोस्त थे, फर्ज करो यार, 3 दोस्त थे, इनके पास बहुत सारा पैसा था। इन्होंने बोला यार टेक्सटाइल में आजकल बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो एक दोस्त ने बोला यार चलो किसी अच्छी कंपनी को देखते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरे दोस्त ने बोला यार पैसा तो हमारे पास इतना है कि हम तो अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं, हम देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा चल रहा है तो क्या करें, कंपनी खोल लेते हैं। तीसरा दोस्त बढ़ा कि भाई पागलों, टेक्सटाइल कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस भी है तुम लोगों को, माना कि प्रॉफिट अच्छा है, चलाएगा कौन? तो एक और अकलमंद दोस्त था उसके अंदर, उसने बोला यार जब इतना पैसा है, कंपनी बना रहे हैं, एक मैनेजमेंट ऐसी ले आएंगे जो टेक्सटाइल कंपनी भी हमारे बिहाफ पे चलाए। सही है, तो वो किसको ले आया भाई? वो ले आया मैनेजमेंट को। ठीक है भाई, मैनेजमेंट में कौन शामिल है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, एडमिन एंड सो ऑन। सही है, ये क्या है भाई? ये कहलाए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ले आया कि भाई आप हमारी कंपनी को चलाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करोगे। साल गुजर गया, साल गुजर गया, शेयर होल्डर्स आए मैनेजमेंट के पास, हाँ भाई हाथ मलते हुए, कितना पैसा हुआ? तो बोला सर आपको पता है कि पहले साल है कंपनी का और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को चलाने के लिए, तो इस साल एक्चुअली कोई पैसा जनरेट हुआ नहीं है, हम लॉस में ही चल रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह लिए, मटेरियल वगैरह लिया है और सप्लायर्स को भी हम ढूंढ रहे हैं, कस्टमर्स को हम ढूंढ रहे हैं अभी, तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, इस साल तो लॉस है। शेयर होल्डर ने बोला कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करो कि प्रॉफिट कब तक जनरेट कर जाओगे? सो बोला कि सर पहले साल में तो लॉस ही आता है मेजॉरिटी बेसिस पे, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे कुछ करके। शेयर होल्डर ने बोला ठीक है यार कोई मसला नहीं, वो खामोशी चले गए। भाई अगले साल अच्छा रिटर्न आएगा, अगला साल आ गया, वो फिर आए मैनेजमेंट से, सीईओ से पूछा भाई क्या रिजल्ट है भाई आपके? तो बोला कि सर इस साल हमारा लॉस आ गया वापस से, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे, कुछ स्टॉक के मसले हो गए थे और कुछ कस्टमर्स जो है ना वो हमारे भाग गए थे या बैंक करप्ट हो गए थे या बैड डेट हो गए, और कुछ सप्लायर में भी जो है ना वो माल थोड़ा हमारा शॉर्ट है। तो बोला ठीक है यार, बिजनेस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी रिवाइज की, फिर चले गए। उन्होंने बोला हम अगले साल आते हैं। अगले साल आए, अगले साल हाँ भाई अब तो सेट है ना? अरे नहीं सर अभी भी थोड़ा मसला चल रहा है, प्रॉफिट आने वाला है, बस अगले साल तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो शेयर होल्डर ने बोला व्हाट द फन, भाई ये क्या मजाक लगा रखा है बार बार कि भाई प्रॉफिट आ जाएगा आ जाएगा, हमने तो कंपनी के अंदर पैसा लगाया और तुम तो उल्टा पैसा मांगे जा रहे हो कि भाई लॉस हो गया और पैसा डाल दो, लॉस हो गया और पैसा डाल दो, बिजनेस करने वाला कंपनी बंद हो जाएगी, ये क्या हरकत लगाई रखी है? तो इन्होंने बोला कि भाई आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ ताकि मैं देखूं कि कंपनी के अंदर कितने एसेट्स हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, क्या सीन हुआ है। तो सीएफओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ले आया। तो मैंने कहा क्या तुम कचरा जो है ना वो 2 पेजेस बना के ले आए, ठीक है, उसके अंदर एक एसेट लिखा हुआ है और बस प्रॉफिट लिखा हुआ है हाथ से। तो भाई ये कोई बेसिस होना चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, इतनी कंपनीज बनाती है। बोला भाई क्या बेसिस होगी? वो बेसिस होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। भाई आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो और इसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे बना के दो। सीएफओ साहब आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर को दे दी, सीईओ से अप्रूव करा गया। शेयर होल्डर ने देखा, बोला यार ये तो लॉस आ रहा है, हमें यकीन नहीं आ रहा, मसला है यार, इसको चेक कराना पड़ेगा
कि भाई ये क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। भाई जो मैनेजमेंट कह रही है वो सही भी कह रही है कि नहीं कह रही, बनाए किसकी बेसिस पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की बेसिस पे। अब मैनेजमेंट की दी गई इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए एक और बंदे का जन्म हुआ, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, उसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जन्म हुआ। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जन्म हुआ सर, शेयर होल्डर ने क्या कहा, भैया आओ और बताओ कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, क्लास के जो बैच का आखिरी सेशन होगा ना, मैं उसके अंदर भी यही बात कर रहा हूँ। तो जब भी कोई भी सवाल करो, जब भी कोई भी बात करो, ऑडिट की बात हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहेगा। कोई भी आईकैप का सवाल आ जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सिनेरियो आ जाए, कोई सिचुएशन मैं पूछ लूं या तुम फर्म में जाओ, एक स्टेप पीछे हट के देखना सिनेरियो से कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। दैट्स इट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। ऑडिटर को सिर्फ इस चीज पे रिपोर्ट करना है। अगर बने हैं तो ठीक, नहीं बने तो मिसस्टेटमेंट है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल टू आईएफआरएस, ये क्या है, मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो शेयर होल्डर लेकर आए ऑडिटर को इस दुनिया में किस चीज के लिए, जबरदस्त। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। भाई ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, तो ऑडिटर को क्या देनी है, ओपिनियन देनी है। ओपिनियन देनी है कि वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। क्लियर हो गया। अब सर ओपिनियन मैं ऐसी तो नहीं दे दूंगा ना। शेयरहोल्डर ने बुलाया, बोला भाई ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा ये क्या है, तो कह रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैनेजमेंट ने बना के दी है, ये लो चेक करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ है तो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने नहीं बने। मैंने कहा यार व्हाट द फन, क्या मजा आ गया। मतलब शेयर होल्डर ने बोला यार तुम तो ऑडिटर हो ना, देख के बता दो। बोला भाई मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसके पीछे ट्रायल बैलेंस लगा है, इसके पीछे लेजर लगा है, लेजर के पीछे डेबिट क्रेडिट एंट्रीज हैं, जनरल पेमेंट वाउचर्स हैं, और उसके पीछे भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, सेवरल एग्रीमेंट्स है, रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कस्टमर है, सप्लायर है। उन सब का मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। उन सबको मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा, उस सबको मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और उन सबको इवैल्यूएट करने के बाद, उन सबको इवैल्यूएट करने के बाद मुझे एविडेंस ऑब्टेन करूंगा मैं। मुझे हासिल क्या होगा, ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस हासिल होगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो कि सफिशिएंट होगा टू फॉर्म एन ओपिनियन और अप्रोप्रिएट होगा। मतलब जो मेरा रिस्क है, रिस्क क्या है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी है कि नहीं बने। तो मेरा जो एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट होगा टुवर्ड्स मेरा माय ऑब्जेक्टिव, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। उसके बाद में जाकर ओपिनियन दूंगा, उसके बाद में जाके ओपिनियन दूंगा। ओपिनियन क्या दूंगा, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। ये बात क्लियर है। तो सर थ्री पार्टी रिलेशनशिप इज योर फर्स्ट ऑडिट एलिमेंट, financial statement is second, IFRS is third, sufficient appropriate audit evidence is the fourth, and opinion is the fifth element of audit. ये कहलाते हैं क्या, elements of audit. यहां तक बात क्लियर है भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है सब, जी भाई। हाँ दोस्त क्लियर है ये, अच्छा जी। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट में आ जाओ। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन। क्लियर है। अच्छा ये तो ऑडिट है, सही है। एक है एश्योरेंस, एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट कुछ भी हो सकती है अदर देन ऑडिट, जिस पे आप एश्योरेंस दे रहे हो। ऑडिट तो स्पेसिफिक ऑडिट हो गया ना, एश्योरेंस इज द ब्रॉडर टर्म। लेकिन एश्योरेंस के अंदर भी क्या होता है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर को हमने, ये देखो ये ब्रॉडर टर्म्स है। इंटेंडेड यूजर को हमने ऑडिट के अंदर क्या बोल दिया, शेयर होल्डर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब क्या है, कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो कौन है, और वो है मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर कौन है, जो प्रैक्टिस करता है,
सही है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा है। सब्जेक्ट मैटर, किस चीज का ऑडिट हो रहा है सर? सब्जेक्ट मैटर का ऑडिट हो रहा है। इस केस में सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? ये सब्जेक्ट मैटर किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे बने होंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं सर, ऑडिटर लेगा ऑडिट एविडेंस, अगर वो ऑडिट नहीं कर रहा तो वो क्या है? एविडेंस। ऑडिट की टर्म में हमने बोल दिया ऑडिट एविडेंस। क्लियर है? अच्छा जी, रिटन रिपोर्ट अश्योरेंस, ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन। अगर ऑडिट नहीं कर रहा, कोई और एश्योरेंस दे रहा हूं, एश्योरेंस दे रहा हूं लेकिन वो ऑडिट की एश्योरेंस नहीं है, तो एवरी ऑडिट इज एन एश्योरेंस बट नॉट एवरी एश्योरेंस इज एन ऑडिट। ऑडिट वही है जिसके अंदर मैं ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा हूं। सही है? तो रिटन रिपोर्ट एश्योरेंस रिपोर्ट का हमने स्पेसिफाई कर दिया किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में। ये बात क्लियर है? हजम हो रही है चीजें? सही है? कोई मुश्किल चीज पड़ी अब तक? सिंपल है ना? हजम हो रहा है? अच्छा जी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, सही है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई फ्रॉड को रोकना और फ्रॉड को पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, सर ड्राफ्टिंग किसकी जिम्मेदारी है? ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग आपकी जिम्मेदारी है, ये रही ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी आपकी। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, भाई दिल नहीं चाह रहा तो दिल को कंट्रोल रखना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? कि भाई मैं टाइमली बेसिस पे लेक्चर्स भी लूं, मैं क्विज भी अटेम्प्ट करूं, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहूं, ड्राफ्टिंग भी करूं, सब चीजें करूं, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी। ये लो भाई हो गया। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ, भाई ऑडिट कौन करवा रहा है? मैनेजमेंट करवा रही है ना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स एंड टू प्रोवाइड विद। अब ये आगे ऑडिट से रिलेटेड जिम्मेदारी, ऑडिट से रिलेटेड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, उसके पीछे ट्रायल बैलेंस, जीएल, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें, इनवॉइसें हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए अवेलेबल करना या उसको एक्सेस प्रोवाइड करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई। मैंने कंफर्मेशन देगी कस्टमर की, कंफर्मेशन मैंने भेजी, मेरे लेजर में बैलेंस आ रहा था 100 मिलियन, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने रिप्लाई किया 90 मिलियन, डिस्क्रिपेंसी है। अब मैं क्या करूंगा? मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, भाई ये 10 मिलियन शॉर्ट है, अब तो मुझे बताओ इसकी रिकंसिलेशन। ये जो मैनेजमेंट के पास गया, ये क्या थी मांगने के लिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी आ गई ना, अब आप मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दो ताकि 10 मिलियन का डिफरेंस भी मैं रिकंसाइल करूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद whom द ऑडिटर नीड्स टू कंप्लीट द ऑडिट। भाई हर वो बंदा जिसके पास ऑडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने में मुझे हेल्प मिलेगी, मैं हर उस बंदे के पास जाऊंगा, तो उसका मुझे मिलना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रिटन रिप्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ द ऑडिट, रिटन रिप्रेजेंटेशन पे भी सर एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, आइजा 580। तो हम जो ऑडिट पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, चैप्टर से नहीं पढ़ते, तो मैं आपको स्टैंडर्ड से ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। रिटन रिप्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना। ये बात क्लियर है? सही है। फिर आगे देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ लेना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, बस एक ओवरव्यू के लिए आपको दी गई है, ठीक है। अच्छा जी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर आर टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। The ISAs provide the standard for an audit work fulfilling overall objectives of the auditor. In addition, the ISA contain related guidance in the form of application and other explanatory material. The auditor may apply the provided guidance in any given situation to ensure that the audit is performed in accordance with ISA. तो ये explanation है, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट। टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, टू रिमेन इंडिपेंडेंट थ्रू आउट द ऑडिट। अब ऑडिटर की सबसे खास बात क्या है? ट्रस्टवर्दी। ऑडिटर वो है जिसपे ट्रस्ट किया जा सके। अगर ये ट्रस्ट का एलिमेंट निकल गया कहीं से तो अश्योरेंस ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलायंस खत्म हो जाती है। अगर ये ट्रस्टवर्दी वाला एलिमेंट निकल गया ना दोस्त, कि पता चला कि भाई जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा था
उस कंपनी की सीईओ मेरी वाइफ है, जिस कंपनी का मैं पार्टनर हूं, मेरी क्या इंडिपेंडेंस रह गई? या उस कंपनी के साथ मेरा एक मटेरियल सिग्निफिकेंट बिजनेस है, भाई मैं नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहा हूं और नेशनल बैंक से मैंने कार लोन उठाया हुआ है, मार्केट में कार लोन मिल रहा है 11-12% पे, नेशनल बैंक ने मुझे 2% पे दिया हुआ है, क्या इंडिपेंडेंस रह गई मेरी? अगर मैं नेशनल बैंक का ऑडिटर नहीं होता तो क्या नेशनल बैंक मुझे वो कार लोन देता? नहीं देता। तो ये मेरी इंडिपेंडेंस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, भाई मैं क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ, वहां से मुझे जॉब की ऑफर भी आ गई, सही है। अब मैं स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहा, मैं सीएफओ से जाके बहस नहीं कर पा रहा, सही है। मैं उसकी गलतियां उसको बताऊंगा तो वो बोलेगा भाई तू ज्यादा होशियार बनना, तू यहां पर आके पता नहीं क्या करेगा, गई जॉब। तो ये क्या हो गया भाई? इंडिपेंडेंस इंपेयर होने के खदशात हैं। आइए पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स, अदरवाइज हिज रिपोर्ट विल हैव लिटिल और नो वैल्यू। इफ ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, इसको डायरेक्टर्स को हटा के फ्रॉम द कंपनी कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी। इफ ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, हिज ओपिनियन इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपनी। फाइनेंशियल रिलेशनशिप, भाई 3 तरीके की चीज है जिससे आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सबसे पहले पैसा, क्या चीज है ये पैसा, है ना। बीइंग शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, भाई मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो आप ऑडिट कैसे कर सकते हो? आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हो, सही है। खुद को अपॉइंट किया, खुद ही ऑडिट कर रहे हो, कमाल हो गया। हैविंग एनी बिजनेस रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं कर सकता। तो भाई अगर मैंने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ किया मसला, तो हो सकता है बैंक आगे से लोन देने से मना कर दे, उसके कस्टमर भाग जाएं कि भाई कंपनी के अंदर कोई मसला चल रहा है, तो मैं करूंगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी तबाह नहीं करूंगा। लोन क्रेडिट फैसिलिटी लेने में, पर्सनल रिलेशनशिप, भाई फैमिली रिलेशनशिप है, मसला है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, भाई अरसे से उसको ऑडिट करता आ रहा हूं, अब तो दोस्ती यारी डेवलप हो गई है, भाई वो रोज मुझे स्नैप भेजता है, मैं भी उसको भेजता हूं, फेसबुक पे उसने ऐड किया, वो मुझे टैग करता है, रीलें भेजता है, मैं भी उसको रीलें भेजता हूं। लॉन्ग एसोसिएशन को इस तरह की हो गई है हमारी कि घर भी बराबर में ले लिया दोनों ने, इतनी लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। तो कर पाऊंगा मैं उसका ऑडिट इंडिपेंडेंट तरीके से। गिफ्ट्स, ये एक और मसला है, सही है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इन कंट्रास्ट टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स may not be fully independent from directors या company, although they may be able to achieve sufficient degree of independence. Employment relationship, clear? Compliance with ethical requirement, integrity, straightforward and honest in all professional and business relationship. Number 2 is the objectivity, not to compromise professional or business judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of other. Integrity is straightforward, ऑब्जेक्टिविटी, भाई बायसनेस नहीं हो, क्लियर है। ये कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, हम आगे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर भी कवर करेंगे इन चीज़ों को डिटेल में। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, भाई क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूँ ना मैं, तो क्लाइंट ये समझ रहा है कि यार मुझे बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में पता है। मैं इंश्योरेंस का ऑडिट कर रहा हूँ, मैं एनआईसीएल का ऑडिट कर रहा हूँ, तो एनआईसीएल वालों को ये लगता है कि मुझे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में 100% पता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो उनको ये लगता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं, रेगुलेटरी फाइनेंशियल अपडेट है, वो सारी की सारी पता है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, अपना काम ड्यू केयर के साथ सरंजाम देता हूं। टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स at the level required to ensure that a client or employing organization receive competent professional services based on current technical professional standards and other legislations, and to act diligently and in accordance with the applicable technical and professional standards. ये बात क्लियर है भाई? एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हो उसके हिसाब से मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन को अपनी अपडेट करके रखना है. कॉन्फिडेंशियलिटी, टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल एंड क्लाइंट बिजनेस रिलेशनशिप. भाई क्लाइंट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है. अगर मैं एक कंपनी के पास चला जाऊँ, सही है, मैं चला जाऊँ कोलगेट वालों के पास चला जाऊँ कि भाई मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो, बोलेगा यार वेबसाइट पे लगी है ले लो. मैंने कहा वेबसाइट पे तो लगी हुई है, उसमें आपका जो है ना वो फिक्स एसेट का एक स्केड्यूल आ रहा है. तो हाँ आ रहा है, नोट 5-6 में आ रहा है. मैंने कहा यार ज़रा फिक्स एसेट की लिस्टिंग तो दे दो. बोला क्या पागल वागल हो गया क्या, क्यों दे दूँ? मैं क्या यार नहीं दोगे आप? बोला ऑडिटर है क्या हमारा? मैं कहा नहीं ऑडिटर तो नहीं है. भाई ऑडिटर बन गया फिर दूंगा मैं. क्यों ऑडिटर बन गया? क्यों? क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सही है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? तुम तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर दोगे, तो तुम मेरे लिए क्या हो, थर्ड पार्टी हो. मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा. इसका मतलब कंपनी किसी से भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, आपसे करती है. क्यों? क्योंकि आप
इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो, आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है, तो जब कंपनी और आप ओपिनियन तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक आपको ऑडिट एविडेंस हासिल ना हो, तो वो ऑडिट एविडेंस किसी भी कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई जब कंपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करे तो आप उसको पामाल ना करो, उसके तकद्दुस को पामाल ना करो, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर टू कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट नोज और शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। क्लाइंट पे जाके टिकटॉक बनाना शुरू कर दी, सही है, क्लाइंट पे जाके अपनी देगे बेच रहा है, बिरयानी की देगे बेच रहा है, या कोई भी ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे जो आपका प्रोफेशन है वो डिस्क्रेडिट हो, उस पर दाग लगे कि भाई आईकैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं क्या, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसको होना चाहिए भाई आईकैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते हैं, सही है, ये बात ये कर रहा है। कैरी आउट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा ये जो कहाँ गया भाई, अच्छा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी इंशाल्लाह ट्यूसडे को, तो उसके अंदर इन दो कॉन्सेप्ट्स को मजीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to conditions which may indicate possible misstatements whether due to fraud or error and critical assessment of audit evidence। मतलब एक ऑडिटर का एटीट्यूड है, सही है, ऑडिटर का एक बिहेवियर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए उसके दिमाग में चीजें रहती हैं, मैं ऐसे करता हूँ, ये आप हो ऑडिटर और ये आपके एंटीने, एंटीने को क्या क्या काम होता है भाई, मार्केट से सिग्नल कैच करता है, ये इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन उठाता है और ये आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है, सही है। तो सारी इंफॉर्मेशन को लेना, क्वेश्चनिंग माइंड करना, भाई इसमें कुछ गलत हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मैनेजमेंट ने मुझे ये बताया, सीएफओ ने मुझे ये बताया, लेकिन मार्केटिंग वाला बंदा तो ये कर रहा है, एडमिन वाले ने मुझे ये बताया, एचआर वाला बंदा तो कुछ और बात कर रहा है, डायरेक्टर से मेरी ये बात हुई है, सीएफओ तो कुछ और बता रहा है। क्वेश्चनिंग माइंड, कॉरोबरेट करना, एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस के साथ लेके देखना कि दोनों आपस में कंसिस्टेंट है कि नहीं है, क्या कहलाता है कॉरोबरेशन, क्या कहलाती है? कॉरोबरेशन, दिस इज एन ऑडिटिंग टर्म, ठीक है। बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, भाई किसी भी टाइम ऐसा लग सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने, तो मुझे अलर्ट रहना है देखने के लिए। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट, जो भी ऑडिट एविडेंस मुझे मिलेगा मैं उसको क्रिटिकली क्या करूंगा, असेस करूंगा। इन शॉर्ट, द ऑडिटर शुड नॉट बिलीव एनीथिंग विदाउट कॉरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन द पास्ट। भाई माजी में भले ही मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट रह चुकी हो, कितनी ही इंटेग्रिटी के साथ उसने क्यों काम ना किया हो, आपको डेटा दिया हो, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं निकली, कोई फ्रॉड नहीं निकला है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आगे भी सब कुछ सही चलता रहेगा, सही है, आगे भी सब कुछ ऐसा सही चलता रहेगा, ये जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी क्यों है? ऑडिट रिस्क को इवैल्यूएट करना, भाई ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो और ऑडिटर कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना और उसकी क्रिटिकल असेसमेंट के लिए जरूरी है। अवॉइड्स ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, भाई कोई ऐसी चीजें हैं कि ऑडिटर ओवरलुक ना कर जाए, लाइक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की है और वो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, भाई ऐसा कोई सीन ना हो, ठीक है। रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू ओवर जनरलाइजिंग when drawing conclusion from audit observation, सही है, कोई एक कंक्लूजन लेके ओवर जनरलाइज ना करे, हर चीज एक स्पेसिफिक उसका ऑडिट एविडेंस मिला है उसको उसके हिसाब से इवैल्यूएट करे। टू डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट। टू डिसाइड नेचर, भाई किस किस्म का ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, टाइमिंग कब कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए और एक्सटेंट कितना प्रोसीजर करना चाहिए, कितने सैंपल मुझे सिलेक्ट
करना चाहिए और उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है दोस्त? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। बात क्लियर है भाई? क्लियर है? तो एक बार ज़रा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की उसको डेफिनेशन को रीड कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से इस बात को शुरू करेंगे। डन है भाई? कोई सवाल है? ऑनलाइन वालों को सवाल है? कोई सवाल है? कोई सवाल ना आना भी खतरनाक बात है। दो तरीके हो सकते हैं इसके, या तो सब जो पढ़ाया वो सब समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आया। सही है, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला और मेहनत करेंगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, सही है भाई। नेक्स्ट क्लास हमारी है इंशाल्लाह ट्यूसडे को 12:30 बजे। ठीक है, इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे की वो भी क्लास होगी। तो अभी स्टार्ट में हम ऐसी पेस रखेंगे, थोड़ा स्लो स्लो करके आप लोगों को बताएंगे। 2 घंटे की क्लास बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, कभी हो सकता है हम ले जाएं कभी 2 घंटे में, कॉन्सेप्ट ऐसा हो डिस्कस करना है कर लें। उम्मीदी तौर पे 1.5 से 2 घंटे में हम ऑफ कर देंगे। ठीक है भाई, तो चले मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।